बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और स्कॉलर थे, उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था जो बहुत बहुत पॉपुलर है। वो ये है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। एवरी ग्रेट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ वन सॉलिड प्रेप, जिसे हम फ्रेंच में मिज़ अ प्लान बोलते हैं। पर एक मिनट, आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। आर यू रेडी? Do you know what the literal meaning of the word mise en place is? I'll give you 5 seconds to answer this. Options are put in place, clean the kitchen, set the kitchen, या set the restaurant. The correct answer is put in place. Mise means put, en means in. Plan means place. Put in place. Mise en place. इसका मतलब बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन और प्लानिंग साथ साथ ऐसी करें कि किचन ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए जो चीजें पहले रेडी करनी होती हैं उनका लिस्ट बनाएं, उनकी क्वांटिटीज लिखें और सही सेक्शंस में रखें। पुट इन प्लेस। और यही आपका दूसरा सीक्रेट है, प्रिपरेशंस। पुट इन प्लेस, mise en place। शेफ एंथनी बोर्डेन क्लियरली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का श्रेय अपनी mise en place स्किल्स को देते हैं। रीड दिस लाइन, mise en place is the religion of all good line cooks. Do not fuck with a line cook's mise, meaning their setup, their carefully arranged supplies of sea salt, rough cracked pepper, softened butter, cooking oil, wine, backups and so on. If you let your mise en place run down, get dirty and disorganized, then you will quickly find yourself spinning in the place and calling for backup. That's what the inside of your head looks like now. Work clean. वो जानते थे कि सिर्फ एक अच्छी रेसिपी बनाने से रेस्टोरेंट नहीं चलता। उस रेसिपी को कम से कम टाइम में कुक करके गेस्ट को सर्व करना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको मास्टर शेफ के किचन में ले चलता हूं और आप नोटिस करिए कि जजेस ने कैसे 15 मिनट का चैलेंज, जी हाँ 15 मिनट चैलेंज कॉन्टेस्टेंट्स को दिया और अपना अपना mise en place कंप्लीट करने को दिया। To be a true master chef, you need to be able to work fast and with precision. But above all, you must be organized. Your challenge today is this. A perfect mise en place. Mise en place is a French culinary term that simply means to have all your ingredients prepped and ready before you even start to think about cooking. This competition is not just about speed, it's about precision and control. If your prep is sloppy, you will be going home. If you don't get this mise en place right, you don't belong in this kitchen. During the challenge, we watched you very closely. And based on what we saw, we're going to call some home cooks up to the front. John Hickey. How do you think you did? I think I did pretty good. Thing is, we agree. Your mise en place just earned you a spot in the top 14. Yes! Your mise en place was hands down the best in the room. Congratulations. Come up and grab your apron. You got it. Great job. Thank you. Julia, Matthew, and Jacqueline. You three had great knife skills and attention to detail. देखा आपने, a perfect mise en place requires 3 things: organizing, perfection and timing. 3 things guys: organizing, perfection and timing. आज आप अपने किचन में ये 3 स्टेप याद करके अपना mise en place करिए, ऑर्गेनाइज करिए, परफेक्शन का ध्यान रखिए और स्पीड में काम कीजिए। आज थोड़ा मेरा मूड अच्छा है, मैं आपको एक गिफ्ट देने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शीट देने जा रहा हूं जिसको यूज करने से आप और आपके सारे किचन स्टाफ दोनों ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और फूड डिले की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।
प्रेपरेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्चुअल टूल है जो किचन डिपार्टमेंट यूज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेप लॉग शीट। जी हाँ, हमारे रिसोर्स सेक्शन में प्रेप लॉग शीट को देखिएगा। तो आइए जानते हैं व्हाट इज दिस प्रेप लॉग शीट। प्रेप लॉग शीट इज अ किचन चेकलिस्ट which has a list of items that need to be prepared and kept ready section wise. जी हाँ, section wise. And this section wise list requires you to be ready before the restaurant is open for the customers. इस शीट में आपको वीकली बेसिस पर किचन की प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती है। मतलब डेली बेसिस पे मंडे टू संडे एक फोरकास्ट प्लान करना होता है और उस हिसाब से आपको प्रेप प्लान करना होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अपने पिछले 4 हफ्तों का, जी हाँ, अपने पिछले 4 हफ्तों का कंजम्पशन पैटर्न देखें। अपने रेस्टोरेंट में चारों मंडे का एवरेज निकालें। यही एवरेज आपका अगले मंडे का प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करता है। इसी तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे तक अपना प्रोडक्शन फोरकास्ट प्लान करें। किस सेक्शन में किचन प्रेप करना है ये सारी टीम को आप बता दें। बहुत जरूरी है अपने प्लान को अपने टीम के साथ शेयर करें। ये किचन प्रेप शीट का प्रिंट आउट निकालें, अपने टीम को शेयर करें, बताएं। हर सेक्शन के कुक को ये समझाएं कि उनका मंडे से संडे तक कितना प्रोडक्शन फोरकास्ट है। डेडिकेटेड सेक्शन कुक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाएं। डू नॉट फॉरगेट दिस। इफ यू डू नॉट कम्युनिकेट दिस to your cooks, they will get confused and they will still keep doing the same mistake again and again. इस शीट में 2 कॉलम्स हैं, in hand and to make. इन दोनों कॉलम्स का मतलब समझ लें आप। in hand मतलब जो आपके हाथ में है, to make मतलब जो आपको बनाना है। in hand मतलब जो आपके हाथ में है, to make मतलब आपको कितना बनाना है। हर एक सेक्शन के कुक को बोलें कि अपने सेक्शन के in hand prep क्वांटिटीज को लिख लें और फोरकास्टेड क्वांटिटी में इस इन हैंड प्रेप क्वांटिटी को माइनस कर लें। जो नंबर आएगा उतना ही क्वांटिटी उस सेक्शन के कुक को बनाना है। यू हैव टू मेक द सेम क्वांटिटी टू मेक द सेम क्वांटिटी। हर दिन का प्रेप टू मेक वाली क्वांटिटी को ही देखकर बनाना है। यदि आपको लगे कि वेस्टेजेस हो रहे हैं तो आप फोरकास्टेड क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, जिससे अगले दिन, अगले हफ्ते आपके वेस्टेजेस कम हो सकते हैं। This sheet is available for you. Once again, this sheet is available for you in our resource section. आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं शीट को, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और अपनी टीम और अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ को शेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप अपना विजन अपने टीम को जरूर बताएं। ये जरूर बताना चाहूंगा कि स्टाफ ब्रीफिंग में इस प्रोडक्शन प्रेप शीट को डेली डिस्कस करें। अपने लाइन आइटम्स, अपने सेक्शंस और अपनी टीम के सारे स्टाफ मेंबर्स को ये बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Once you have identified the preparation, now you need to identify the order time of the items. तो ये था आपका दूसरा सीक्रेट, मीज़ अ प्ला, जिसको हम प्रेपरेशन के नाम से इस वीडियो में आपको सिखा रहे हैं। Now since you have identified the second secret called preparation, you need to identify the order time for all these preparations. Let's quickly go to the third section.